Good evening, sir and madam. As you know, this is a free webinar series. Main purpose is people are joining. Those who are new, for them, this information is important. That this is free webinar series. Only purpose is to increase knowledge pool in bioscience subject. This is third year of this initiative. More than 150 lectures has been already organized. Most of the lectures are available on my YouTube also. We don't want to only increase the number of participation. We want increase the knowledge pool, real knowledge pool. That's why I request those who are joining to attend complete lecture. And after last phase of the lecture or finishing the lecture, I will share Google feedback form in chat box. Neither before the lecture nor after the lecture, means when discussion will over, then you cannot fill that Google feedback form. So if you need e-certificate, so keep watching that message box also and this lecture also. And as you all know that today's speaker is Dr. Amresh Mishra, and he is assistant professor at Noida International University. Before joining there, he has served at Parul University also, and he has organized very big conference, having more than 30 researchers, faculty as a speaker, as a panelist, and he has also, you can say, got postdoc for Bhilai, NIT, IIT Bhilai. And he's also, main important thing is, he's also founder of one company, Chem BioBreeze Private Limited. He's director and co-founder of that company. And he's very good person. We have met first time physically at Parul University. He's means recently he got 50 lakh grant from ICMR also. Indian Council for Medical Research as early grant scheme, under early grant scheme of DHR ICMR. So I welcome Dr. Amresh Mishra in the Science Dialogue series, and I'm grateful to him for accepting our invitation. Please on your camera, Dr. Amresh Mishra ji. Yes, welcome. And Sir, thank you. am I audible? Yes, Thank you you. are audible. Thanks to you, sir. Thanks to the Science Dialogue platform, and especially you, sir. And we know to each other since my bachelor's. When I was doing my BTech from Gautam Buddha University, Greater Noida, I asked one help that, sir, I need your guidance, particularly for this research experiment. And sir replied me immediately. And then we got to know to each other since I think 2012 or 13. Oh. But in person, we met at Parul University when I was invited as a chief guest at an national conference, and to getting funding for conference, organizing the same conference, I got a lot of mentorship and lot of support. Due to because of sir support, I got the funding, and I was able to. Greatness. This is your greatness, because I support many people, but they hardly few people recognize. Yes, So sir. this is greatness in science. You are acknowledging, but this is all capability of the coordinator and a scholar. That's why they get anything. Only teacher, guide और mentor only can support. चलना पड़ेगा आपको. मैं स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि मैं बता सकता हूँ रास्ता, लेकिन चलने का साहस, चलने का क्षमता आप में होना चाहिए. Yes, sir. So now platform is yours. People have joined, Hannah. Thank you. And I request again participants to, it is interactive session. Generally, you can ask question after finishing lecture, but in between also, if something is very important to ask, otherwise you are not, your brain is not accepting that thing to proceed, then you can ask. You can unmute and ask.
Yes. Otherwise, we keep discussion after lecture. Yes, because I'm just sharing my full screen, so I'm not able to see that. Yes. who I we- will convey you. Don't worry. I will convey you, or they will unmute and then speak. Okay, okay. You can do all. I mean, you have all the option. Either you raise your hand or just turn on your mic and ask your query and discuss here. So yeah. Nicely introduced by the sir only, so I'm not going to introduce myself again. Today's topic is research and innovation policy gaps in India. So mainly I will focus in the research and innovation policies, particularly in Indian scenario. So why this conversation important? Because all recognized, all very well knows that India produce world-class scientific talent, which is working in India as well as globally. Research output contribution of India is increasing rapidly, and translation into impact remains limited. What I mean by this line? Today, every call, every funding agency, every government call focusing on the translational research rather than basic research, or they are saying ki if your output could be turned into a product in intellectual property, we can claim, and we can make a product of it, then we only going to fund you. This is just because that we are shifting our interest towards translational study more rather than basic study, which we were doing previously. So this is a big shift. This shift is like previous 1 or 2 year we are seeing. But the policies gap is still there, still remaining. We are making new policies, but execution of policies is still challenging. So what policies will determine what research should be funded? Like I told you, I'll make the conversation in Hindi and English. I'll mix the language. Yes. Because lots of the audience is, I think, bachelor's students also, master's students also, PhD scholars also. So I'll make a mixed language. Just I got this. So okay. So policies क्या डिटरमाइन करती हैं कि कौन से रिसर्च को, जैसे अभी मैंने पिछला बताया कि ट्रांसलेशनल स्टडीज वी आर फोकसिंग as of now, previous 1 to 2 years, we are little bit more concerned about the translational research. Specifically, they mention about that we are going to fund only the translational research, and which outcome could be intellectual property generated. And policies also determine which idea reach to the सोसाइटी. मतलब प्रैक्टिकल आउटकम हमें देखना है, ट्रांसलेशनल स्टडी देखना है, उसके बाद हम उस स्टडी में, उस आइडिया में इंटरेस्टेड होंगे. वो इंडस्ट्री का हो, आपका स्टार्टअप हो, या आपका रिसर्च स्टडी हो, वो एकेडमिया में हो, आप इंडस्ट्री में आइदर या एकेडमिया में हो, दोनों ही चीजें दोनों ही जगह देखी जाएंगी. तो सपोज आप स्टूडेंट हैं, अभी प्लान कर रहे हैं स्टार्टअप का, या आप ऑलरेडी स्टार्टअप में हैं. जैसे मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने बायरेक में अप्लाई किया, बट आई गॉट द कमेंट. सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 or 2 years, which I was waited. I wrote a research proposal, I submitted, and I waited their response. So they give me the comment. I'm just sharing you my experience, so you can learn, you can आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अगर आप स्टार्टअप का प्लान कर रहे हो, या स्टार्टअप है आपका, या एकेडमिया में हो, रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना है. 2 things which I already mentioned previously, कि your study should be translational. Make sure that you should
make it beneficial to the society. Outcome should be practical. So 2 major comment I received from them, and I revised it accordingly, and I resubmit it there from the recent call of BIRAC to my startup, my company, ChemBioBridge Research Private Limited. So what is the innovation? Innovation is the societal impact. Like I said, key innovation directly benefit to the society, and it creates an economic value and policy relevance also. So what Policy Act as? Policy Act as a bridge between lab and the real life, our practical life, daily life. So our R&D expenditure is 0.6 to 7%. It's about to 0.7% of our total GDP. But अगर हम और कंट्रीज को देखें, हालांकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन नहीं सही होगा, बट फिर भी हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि हम अगर कंपेयर करें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से, तो हम क्या देखते हैं, एक बड़ा गैप है. 4 to 5% they are investing of their total GDP over R&D expenditure, where we are investing only 0.6 to 7%. So this is the big gap. Publication, no doubt, we are growing rapidly, but at the same time, retraction rate, अभी कल ही रिपोर्ट आई है, retraction रिपोर्ट कल आई है कि कितने पेपर रिट्रैक्ट हुए किस कंट्रीज के, और इंडिया उसमें सेकेंड में है, चाइना फर्स्ट में है. So at the same time, we are growing rapidly in terms of publication, but retraction rate is also very high. So we should very careful about that also. अच्छा, पेटेंट IPR जनरेशन, IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR में पेटेंट भी आ गया, कॉपीराइट भी आ गया. तो in terms of IPR generation, patent generation, we are very low. We are doing not even average. And we also, जो अभी हाल फिलहाल की जितनी भी गवर्नमेंट कॉल हैं, वो मोस्टली पब्लिक फंडिंग पे बेस्ड है. अभी जितना भी बजट रिलीज हुआ है उसमें 70 to 80% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट फंडिंग का है. तो प्राइवेट फंडिंग का अगर होगा तो दे आर वेरी मच केयरफुल अबाउट टू गिव ग्रांट. वो केवल, और सपोज मैं एक कंपनी हूं, मैं अगर मैं किसी को फंड करूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 10 times ज्यादा होके मेरे पास आए. तो जब मैं किसी को फंड करूंगा तो मैं बहुत ही केयरफुल रहूंगा और मैं देखूंगा कि ये स्टडी सच में है ट्रांसलेशनल, इफेक्टिवली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रियल लाइफ में इसको उतार सकते हैं या नहीं. तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैं फंड करूंगा. ठीक है, तो ये एक अच्छी भी चीज है और एक चैलेंजिंग भी है, बट मोस्टली पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली अगर गवर्नमेंट फंड ज्यादा करती थी तो वो थोड़ा सा लेस केयरफुल रहती थी फंड देने में और ये इवेलुएट करने में कि ये स्टडी ट्रांसलेशनल है या नहीं है. तो अब क्वालिटी ऑफ रिसर्च वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन प्रीवियसली. सो ज्यादातर चीजें इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है. So what is the funding and policy ecosystem scenario in India? Central agencies, we all knows के DST है, DBT है. DST का full form Department of Science and Technology, Department of Biotechnology DBT, ICMR है, ANRF है, CSIR है, AICTE है. ऐसे ही करके कई सारी से सेंट्रल एजेंसीज हैं जो फंडिंग और पॉलिसीज का एक इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा है. ऐसे ही करके स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जैसे सर ने मुझे गाइड किया था GSBTM के लिए, मुझे बताया था, मैं बिल्कुल भी अनअवेयर था, बट सर ने गाइड किया कि GSBTM है. और GSBTM, माय एक्सपीरियंस विद GSBTM इज क्वाइट गुड. GSBTM इज वेरी एक्टिव. I appreciate their effort
and the way they are managing things is very good. Not even central agency is doing like that, the state government agency doing like GSBTM. अगर मैं GSBTM को UPCST से कंपेयर करूं, मैं मतलब UPCST इज ऑल्सो डूइंग गुड, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट GSBTM की जो पॉलिसीज हैं, जो एक्टिवनेस है, वो एक अलग लेवल का है. मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं आपको. I was applied for conference funding and within 15 to 20 days I got the approval. अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो ये हो जाता कि आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, बट शॉर्टलिस्ट हुआ था तो विद इन 15 to 20 days आई गॉट द अप्रूवल. सो केवल उस अप्रूवल की ही वजह से मैं टाइम पे प्रिपेयर कर पाया कॉन्फ्रेंस के लिए और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाया. सपोज अदर फंडिंग एजेंसीज क्या करती हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने भी लगा देती हैं, उसके बाद हमें अप्रूवल मिलता है, तो हम पास टाइम कम रह जाता है प्रिपेयर करने के लिए. समटाइम्स क्या होता है कि वो तो डेट ही निकल चुकी होती है, फिर हमें एक्सटेंड करना होता है. तो वैसा GSBTM के साथ मेरा नहीं हुआ था. वो GSBTM मतलब वो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज है. वैसे ही यूपी में, उत्तर प्रदेश में UPCST है. UPCST एक उत्तराखंड में भी है, वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसी. ऐसे करके हर एक स्टेट की अपनी फंडिंग एजेंसीज हैं, लाइक UPCST, GSBTM और central agencies. You all very well aware of that. DST, DBT, ICMR, ANRF, CSIR. So इंडिया किस चीज में अच्छा है या अच्छा कर रहा है? स्ट्रॉन्ग स्टेम फोर्स. स्टेम का फुल फॉर्म मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो हम साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं. कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. हम जब भी, आप इसरो का एग्जांपल आप ले लो, इसरो जो भी रॉकेट लॉन्च कर रहा है या इसरो जो भी चीजें कर रहा है, वो कितने कॉस्ट इफेक्टिव में कर रहा है? वो लगभग 10 टाइम्स, मैंने कैलकुलेट किया, लगभग उनके 5 to 6 जो प्रीवियस वर्क थे और उनसे कंपेयर किया जो अदर एजेंसीज हैं अदर कंट्रीज की, लाइक नासा और USA. तो उनसे मैंने कंपेयर किया, लगभग 10 टाइम्स हम कॉस्ट इफेक्टिव थे. तो ये काफी अच्छा है. हमारे पास कई सारे कंट्रीज हम इसरो को अप्रोच करते हैं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, और वो पे करते हैं क्योंकि उन्हें कम पे करना होता है एज कंपेयर टू नासा. तो ये एक एग्जांपल था. हम इसमें भी जो एक्सपेरिमेंट अपने करते हैं, हमें 20 लाख का बजट भी एलोकेट होता है, 15 लाख का भी बजट एलोकेट होता है. उसमें भी हम ट्रांसलेशनल स्टडी को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं और काफी बार सफल भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि आउटकम नहीं आता है या पब्लिकेशन नहीं आते हैं या IPR जनरेट बिल्कुल ही नहीं होता है, बट लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड फंडिंग में हम बहुत अच्छा कर लेते हैं. और कुछ यूनिवर्सिटीज में इंट्राम्यूरल रिसर्च फंडिंग है, जैसा लाइक इन NIU, लाइक पारुल यूनिवर्सिटी. सो दे आर गिविंग 3 to 5 lakhs ओनली, बट इवन 3 to 5 lakhs में भी वहाँ की फैकल्टीज काफी अच्छा स्टडी कर लेती हैं, आउटकम एक जनरेट कर लेती हैं, जिससे कि वो IPR जनरेशन में या पब्लिकेशन, इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, इन टर्म्स ऑफ IPR जनरेशन, वो कुछ कर पाए, कुछ आउटपुट दे पाए, इवन इन लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड फंडिंग एंड लिमिटेड टाइम. And growing in strength in computational biology, we are very good and we are doing very well in computational biology, in AI and data science. AI data science के तो हम सब मैन पावर ग्लोबली हम ही ने सप्लाई कर रखे हैं. लगभग इतना ट्रम्प ने, इतने जो USA है, इतने सैंक्शन लगा दिए, बट इसके बारे में कभी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया है. इवन वो अपनी वीजा पॉलिसी भी चेंज करने के प्लान में है, जो उसने रिस्ट्रिक्शन पहले लगा दिए थे, वो इस वजह से केवल कि जो डेटा साइंस का मैन पावर है उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो वापस आ जाएगा इंडिया, उसकी वजह से केवल उनको वीजा पॉलिसीज में जो स्ट्रिक्ट है वो डाइल्यूट करने
का वो सोच रहे हैं। अभी मैं कल ही एक न्यूज आर्टिकल था, वो अमेरिकन न्यूज़पेपर का था, तो वो ऑथेंटिक होगा, है ना। अगर इंडियन न्यूज़पेपर कुछ छापता तो वो शायद बायसनेस हो जाती कि नहीं, वो अपने लिए अपने स्टूडेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपना मैन पावर ग्लोरीफाई करने के लिए वो कुछ लिख रहे हैं। बट अगर अमेरिका के लिए कोई अमेरिकन न्यूज़पेपर ही क्रिटिसाइज करे तो वो हम थोड़ा सा रेलेवेंट मान सकते हैं, और उन्होंने जस्टिफाइड रीजंस भी दिए थे उसके। So, where does the system break? When we generated an outcome and we got a publication of that outcome, the research work is stopped for most of us. कि ओके ठीक है, हमें फंडिंग मिल गई, हमने ये आउटकम आ गया हमारा, हमारे पास हमने एक मैन्युस्क्रिप्ट रेडी कर ली, उसको सबमिट कर दिया किसी अच्छे जर्नल में, पब्लिकेशन आ गया, अब यहाँ से खत्म है। बट यहाँ से चीजें चालू हो रही हैं। अब पब्लिकेशन आ गया, अब हमें आईपीआर के लिए जाना है, हमें और फंड के लिए जाना है, हमें और भी कोलैबोरेटर्स को अप्रोच करना है, हमें इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करना है, एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन करके हमें कुछ ट्रांसलेशनल स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये है सेकेंड पॉइंट, यही है एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज, वीक एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज। बायरैक इस समय नंबर ऑफ रिसर्च प्रपोजल कॉल्स निकाल रही है। बायरैक क्या है? डीबीटी का ही पार्ट है। और डीबीटी का पार्ट क्या है? डीबीटी मोस्टली एकेडमिया या एकेडमिक रिसर्च को सपोर्ट करती है, बट बायरैक एट द सेम टाइम डीबीटी का ही पार्ट है, बट बायरैक मोस्टली इंडस्ट्री या एकेडमिया इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन को वो सपोर्ट करता है। ठीक है, young researchers less recognition, and innovation pipeline remain incomplete. So these two is failure of the effective policy development, and even we developed the policy, we didn't implement it effectively. तो ये पॉलिसीज का एक कॉन्स है, एक बहुत बड़ा गैप है। पॉलिसी की वजह से ये गैप आया है लास्ट 3 और 4 पॉइंट्स का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Then policies on paper, we have science technology innovation policies, national education policies अभी रिसेंट में डेवलप हुई है, साइंस स्टार्टअप इंडिया। अच्छा, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपको एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की है और कुछ कुछ मेजर चेंजेस किए। एक चेंजेस मैं बताता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अब बैचलर्स के बाद भी कोई अगर पीएचडी करना चाहे तो कर लेगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि सपोज कोई इन बिटवीन बीटेक कर रहा है या कोई बीएससी कर रहा है बच्चा बैचलर्स में या मास्टर्स में, और वो सेकेंड सेमेस्टर में छोड़ना चाह रहा है या थर्ड सेमेस्टर में छोड़ना चाह रहा है, तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे उसको कि 1 साल इसने ये कोर्स किया और वो दूसरे उसमें शिफ्ट हो जाए, कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट हो जाए। बट ये पॉलिसीज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुई या नहीं, इसकी एनालिसिस अगर की जाए तो हमें ये पता लगेगा कि ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों तक बेनिफिट, रियल जो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या हुआ ये पॉलिसीज बनने का, या इसका इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हुआ कि नहीं, तो आंसर इज नो। पहली बात, अनअवेयर है स्टूडेंट, इसका सेंसिटाइजेशन अच्छे से नहीं किया गया, स्टूडेंट अनअवेयर है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो नहीं पाई जो उन्होंने सोचा था। पॉलिसीज उन्होंने नो डाउट बहुत एक्सटेंसिव पॉलिसीज बनाई, बहुत मॉडिफिकेशन किए, बहुत अच्छे चेंजेस किए, बट इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन से पहले आता है अवेयरनेस। जब ये दो चीजें नहीं होंगी तो थर्ड हमारा आता है आउटकम। तो आउटकम कहाँ से आएगा, है ना। तो ये एक बड़ा ही मेजर गैप होता है कि हम पॉलिसीज या तो बना नहीं रहे हैं, या बना रहे हैं तो उसकी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से आउटकम में एक बड़ा गैप आता है। मैं ऑलरेडी फोकस बता चुका हूँ कि हाँ, पॉलिसीज अब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में फोकस कर रही हैं, ट्रांसलेशनल रिसर्च में फोकस कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इंडस्ट्री और एकेडमिया का वो कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो कि अभी ट्रेंडिंग में भी है। काफी लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, काफी अच्छा ये चल रहा है।
Then Realty Insight Institution. मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी रहा हूँ, वहां से भी मैंने अप्रूवल लेने की कोशिश की है कि सपोज एक फंडिंग के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मुझे थ्रू प्रॉपर चैनल अपना एप्लीकेशन बढ़ाना होगा। उसके लिए जो अप्रूवल साइकिल है वो एक लॉन्ग रन में है, लगभग 5 से 10 दिन। ये ऑन एन एवरेज है कि 5 से 10 दिन मुझे अप्रूवल के लिए वेट करना है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का। मैं इतना मतलब आई डोंट नो, बट मेरे दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि दिस इज वेरी लॉन्ग गैप, 5 to 10 days। 5 to 10 days में महीना भी लगता है अप्रूवल, महीना भी लगता है, 2 महीना भी लगता है। कई कॉल का सर ऐसा है कि 1 महीने की ही उसकी टाइमलाइन है, 1 महीने में ही सबमिट करना है। 1 महीना अगर अप्रूवल लगेगा तो फिर कैसे होगा? कोई फैकल्टी पहले अप्रूवल एचओडी से लेगा, फिर डीन डायरेक्टर पास जाएगा, फिर वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार से अप्रूवल होगा। सो इट टेक्स months, 2 months also, है ना, 3 months also sometimes। तो ये है। अच्छा, ये अगर आप आ जाए कि आपको स्टडी करनी हो जिसमें एनिमल मॉडल इन्वॉल्व है, तो आपको एथिकल क्लियरेंस भी देना होगा। एथिकल क्लियरेंस के लिए एथिकल कमेटी का अप्रूवल लो। एथिकल कमेटी वेट करेगी जब एथिकल कमिटी महीने में या 2 महीने में बैठती साल है। में कहीं साल में एक बार बैठती है, क्योंकि उसमें 4-5 लोगों ये का एक कमेटी है, तो बैठाना। बहुत बड़ा गैप है रिसर्च एंड इनोवेशन के टर्म में, पर्टिकुलरली इन इंडिया, है ना। बाहर भी टाइम, मतलब एथिकल अप्रूवल के लिए टाइम लगता है, बट इतना नहीं लगता है जितना यहाँ बाहर लगता है। वो अपने एफर्ट देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव कराएं, जल्दी से जल्दी सारी चीजें हों और हम टाइमली इसको सबमिट करें। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली, और मैंने क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड भी रहा हूँ, सर भी जेएनयू से एफिलेटेड रहे तो जेएनयू का भी जानते हैं वो, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड रहे तो प्राइवेट का भी जानते हैं। प्राइवेट का थोड़ा सा स्लाइटली मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया कि स्लाइटली बेटर है। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा यूनिवर्सिटी है। मैं जेएनयू में रहा और मैं एमएसयू में भी रहा, एमएसयू बड़ौदा में भी, और अभी यहाँ हूँ। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है, बहुत जगह तो जो नया अच्छा लोग मान लो छोटे यूनिवर्सिटी में चला गया, तो वहाँ कोई एग्जिस्टिंग रूल ही नहीं है। बिल्कुल Suppose if you are getting first time or applying first time, so there is mushrooming of institutions, private institutions, they don't have existing कि कौन क्या करेगा, है ना, किस ऑफिस वो हैंडल करेगा प्रोजेक्ट को, कैसे उसका होगा अप्रूवल, कौन देगा। सो एवरीबॉडी वेट ईच अदर, है ना, तो पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो गवर्नमेंट एजेंसी का उनके पास फंड नहीं है, तो पहले से उनके पास वो जो होना चाहिए ना, कौन सा ऑफिस बेयर कौन सा काम करेगा, उनके पास कुछ नहीं है जी। तो वहां अगर मान लो आप कहीं ट्रैप हो गए अच्छे मतलब छोटे इंस्टीट्यूशन में कि भाई जाएंगे वहां इंप्रूव करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। वहां पर में आपको पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कन्विंस कर करके भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। दूसरी बात, उनको लगेगा कि भाई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें सारे ये बचाएंगे, तो वही आपसे बचाने लगेगा, उसी का एक्सपेक्टेशन हो जाता है, क्या ना, वो करें। बहुत सारे हमारे तो बहुत सारे संपर्क में लोग अलग अलग जगह, है ना। यस सर। तो ये सारा जो है बहुत सारा हर्डल है। तो जो साइंटिस्ट है या जो प्रोफेसर है या जो एप्लीकेंट है, वो सारा का टाइम अपना डॉक्यूमेंटेशन में ही लगा देता है रादर देन इन्वेस्टिंग इन क्रिएटिविटी। और तो ये एक हर्डल है, बड़ा एक हर्डल है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सेम, डॉक्यूमेंटेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मीन्स कि डॉक्यूमेंटेशन में ही हमें फॉलो अप लेने जाना है, बार बार हमें सारी चीजें करनी है, स्ट्रीमलाइन नहीं है चीजें। तो ये एक बड़ा हर्डल है जो एक हार्श रियलिटी है, वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। देन सेंट्रल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट डिस्कनेक्ट। सेंट्रल पॉलिसीज या तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, कुछ पॉलिसीज स्टेट डिनाई कर देता है इम्प्लीमेंट करने से, या स्टेट को वो फेवरेबल नहीं लगी तो वो अच्छे से उसको ना तो अवेयरनेस देता है ना उसको इम्प्लीमेंट करता है अच्छे से। बस दिखाने को उसने दिखा दिया कि ये सेंट्रल की पॉलिसीज हैं, ये ऐसा ऐसा है, और डॉक्यूमेंट कर दिया, उसको सेंसिटाइज ही नहीं किया या मैंडेटरी ही नहीं किया। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट है, और जिसकी वजह से भी पॉलिसीज पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन देयर आर बिग गैप्स।
बट स्टेट गवर्नमेंट, मैं फिर से GSBTM को एक्नॉलेज करूंगा यहाँ पे कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मैंने सबकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देखा, बट बहुत कम फंडिंग एजेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो फंडिंग प्रोवाइड कराती हैं। और चलिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो फंडिंग प्रोवाइड कराती हैं, उनमें से बहुत सिलेक्टेड हैं जो 4 या उससे ज्यादा कॉल्स उनके आ रहे हैं। वो 1-2 उनके स्कीम्स हैं बहुत पुरानी चली आ रही हैं, वो 10-20 लोग को देते होंगे और उसमें कोई भी रिवीजन नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ भी रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट नहीं, कोई एनेक्सर नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई नॉलेज नहीं कि कब ये लास्ट डेट है, कब इसका थ्रू आउट द ईयर है कि नहीं, कि इसकी पर्टिकुलरली टाइमलाइन क्या है। बट GSBTM के केस में सारी चीजें क्लियर हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं और नंबर ऑफ स्कीम्स चल रही हैं। वो चाहे स्टूडेंट के लिए, सर तो GSBTM में बहुत ही स्कीम्स में इन्वॉल्व थोड़ा सा अब उसमें भी चेंज आया आपके मिलने के बाद से। जो 3 महीने पर प्रपोजल मंगाया जाता था या ऑनलाइन मंगाया जाता था HR एक्टिविटी के लिए, जी, न्यू मिशन डायरेक्टर हैव स्टॉप दैट, है ना। वहां भी मिशन डायरेक्टर जो आते हैं या ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, तो उससे बहुत सारा चीज जो है ना वो रेगुलेट होता है। सो अभी वो जो HR एक्टिविटी है दैट इज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। आप देखे होंगे कि GSBT में स्पॉन्सर्ड जो जितना 2024-25 में हुआ, 25 के शुरू में हुआ था, वो अब उसके बाद जो है ना, क्योंकि मिशन डायरेक्टर नए आए, ज्वाइंट डायरेक्टर का भी रिशफल हुआ, जो HR में थे वो चले गए R&D में। सो नाउ देयर इज सम रिशफलिंग इन GSBTM आल्सो। और कुछ दिनों तक अच्छा चल रहा था इसलिए क्योंकि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था। 2004 में GSBTM स्टार्ट किया गया था। There is no equivalent agency in any state like GSBTM who promote the biotech funding, है ना। There are so many scheme, industrial scheme है, R&D scheme है, HR activities है, वो सब स्मूथ। थोड़ा सा मुझे जो लगा इस बार कि थोड़ा सा हर्डल आया है अभी GSBTM में, हो सकता है फिर नए मिशन डायरेक्टर आएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। जो आपके करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव GSBTM है, कोई स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, फंडिंग एजेंसी कोई भी एक्टिव नहीं है। बहुत बताए ना कि आपका उस साल में 30-40 जगह कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, देवर फंडिंग। इस साल उतना नहीं हुआ। और पहले ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालते थे, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना बंद हो गया है ना इस साल से। नहीं तो HR में डॉक्टर अनुसुईया बदलकर शुरू से थी, तो वो बहुत सारा एक्टिविटी, HR एक्टिविटी चलता था। अभी मुझे लग रहा अभी थोड़ा सा वो हुआ है ना। उनका इस बार भी वो प्राइवेट कंपनी को क्रैश कोर्स करवाते थे, 13 सेंटर में होता था UG के लिए क्रैश कोर्स जी, और PG के लिए फॉर क्वालिफाइंग नेट गेट एग्जाम्स। वो भी इस साल 3 सेंटर में किए और प्राइवेट कंपनी को दिया उन्होंने। तो थोड़ा जितना स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उतना नहीं हुआ वहां पर में। ऐसा थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा उसमें आप समझिए लैग आया है। मे बी इट विल इम्प्रूव। Yes, please continue. So, what I identified, we identified the key gaps of research and innovation policies. 4 to 5 key gaps. First one is funding design. हम नॉर्मली चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, वो 2 से 3 साल की फंडिंग हमें देता है। 2-3 साल की फंडिंग में हम ये सोचें कि कोई ट्रांसलेशनल स्टडी हो जाएगी या प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अभी सिर्फ थोड़ा सा गियर अप किया है ANRF ने, अदर फंडिंग एजेंसीज ने, कि वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है, वो 5 साल तक की भी फंड दे रहे हैं और अब ज्यादा फंडिंग भी वो दे रहे हैं अगर कोलैबोरेशन है, अच्छा जस्टिफाइड है रिसर्च प्रपोजल, then they are approving the funding even 1.5 crores, 2 crores, 2.5 crores या उससे भी ज्यादा। तो टाइमलाइन इंक्रीज, फंडिंग आल्सो इंक्रीज, और ये अभी 1-2 साल में ही शिफ्ट हुआ है। पहले भी कुछ स्कीम्स थी जो 4-5 साल की थी, बट बहुत ही लिमिटेड थी। अभी
इसमें प्राइवेट फंडिंग भी इंक्लूड हुए हैं, कई इंटरनेशनल फाउंडेशन भी, गेट का, बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है गेट फाउंडेशन, 2-3 ANRF के साथ में और ICMR के साथ में मिलके वो उन्होंने कॉल निकाली है. You can also apply, still call is going on in BIREC and ICMR and ANRF. तो फंडिंग डिजाइन का अभी फिर भी स्टिल दे आर लैकिंग एंड चैलेंजिंग. फंड रिलीज में मेन हर्डल है, एक तो पहले तो उसका रिजल्ट आ जाए टाइमली, देन रिजल्ट आने के बाद सपोज आई शॉर्ट लिस्ट है. माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अभी मुझे ICMR DHR से 50 लाख रुपीज ग्रांट हुए. तो दे आर जस्ट कि रिजल्ट आ गया, आज रिजल्ट आया है, within 1 month they release the fund for 1 year. So they are very quick. But most of the funding agencies, ki result aa gaya hai, ab you have to wait for next 5 to 6 months to get the release of fund. Then you will advertise your JRF and then you will execute your work. So this is the major hurdle. Then limited support for high risk ideas. But ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है कि अभी सपोर्ट करने लगी है गवर्नमेंट. अगर आइडिया अच्छा है तो और जस्टिफाइड है तो जैसा मैंने बोला कि 5 साल तक की भी फंडिंग दे रही है और फंडिंग अमाउंट भी उन्होंने बढ़ाया है. फंडिंग का जो एप्लीकेशन अप्रूव होने हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी, नंबर ऑफ फंडिंग भी उन्होंने इंक्रीज की है. तो ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हुआ है हाल फिलहाल में, 1-2 साल में ही. देन सेकेंड मेजर गैप इज अर्ली कैरियर रिसर्चर. अर्ली कैरियर मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा गैप कम हो सकता है क्योंकि मैं अर्ली कैरियर साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ और मुझे अभी कुछ ऐसा मेजर हर्डल आया नहीं है. मैंने पोस्ट डॉक कंप्लीट किया, फंडिंग के लिए अप्लाई किया, मुझे फंडिंग मिल गई, अब मैं एग्जीक्यूशन में भी चला गया, अप्लाई कर रहा हूँ. और बट मेजर जो अर्ली कैरियर साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए अभी चैलेंजेस है. मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग. क्यों? सर भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं भी पारुल में हूँ. मेनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि टीचिंग लोड काफी ज्यादा है. एट द सेम टाइम वे आर डूइंग टीचिंग लोड, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी उनके पास में है. अब ये 2 चीज का लोड होने के बाद थर्ड वन उनको दिया जाता है कि आप रिसर्च आउटपुट भी दो, और कुछ जगहों पे तो मैंडेटरी कर देते हैं कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, आपको देना है. तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है. लिमिटेड इंडिपेंडेंट फंडिंग, अभी भी अर्ली कैरियर रिसर्चर्स के लिए लिमिटेड इंडिपेंडेंट फंडिंग्स हैं बिकॉज जनरली दे आर लुकिंग फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन कि उनके पास पब्लिकेशन होने चाहिए, उनके पास पेटेंट होने चाहिए, उनके पास कोलैबोरेशन होने चाहिए. बट अर्ली कैरियर साइंटिस्ट कहाँ से ये सब लाएगा? PhD में वो कितने ही पब्लिकेशन ले आएंगे, है ना, वो कितना ही कोलैबोरेशन कर लेंगे. तो हालांकि वो दे आर एक्सपेक्टिंग, और सम ऑफ the early career scientists fulfilling also. They have a very good number of publication, they have very good number of IPR generation, they have very good number of collaborators. So I will also recommend if you are PhD scholar, you should do that. You should have work on your publication, IPR and collaboration. During my PhD, I also collaborated many PI in India and as well as in abroad. That benefits me to get the postdoc fellowship, to get the ICMR grant, because I have the collaborator. I mentioned them in a co-guide. So my co-guide is from in my project there is 2 co-guide, co-PI. One is from ICMR Institute, NICPR Noida. This is the dedicatedly cancer research institute. And second one is state government university, Gautam Buddha University. So उसका बेनिफिट मिला मुझे कि को गाइड हैं, उनके पास भी इसी सेम डायरेक्शन में एक्सपीरियंस है. आई हैव आल्सो वेरी साउंड CV. So I have 2 patents
to publish, to applied. So I have lots of things to mention in my CV, in my experience. So I got the benefit, I got the project also, है ना. अभी पारुल में वो सर ने बताया है कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया, तो उसका एक दिखाता है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, तो वो प्रेफर करते हैं इन सारे पॉइंट्स को लेके कि अच्छा इनको हमें प्रोजेक्ट देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए. तो आई विल आल्सो रिकमेंड इफ यू आर मास्टर्स स्टूडेंट और even you are doing PhD or looking for PhD, you should prepare yourself like that only कि पब्लिकेशन में काम करो, IPR में काम करो, कोलैबोरेशन में काम करो, ताकि जैसे ही PhD कंप्लीट हो, अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करो तो आपकी CV वैसी होनी चाहिए, या इंडिपेंडेंट कोई रिसर्च ग्रांट अप्लाई करो तो आपको प्रेफरेंस मिले. तो that is my major suggestion, which will be definitely going to help you if you are noting it down. Then third gap is infrastructure inequality. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फंडिंग एजेंसीज है वो मेनली प्रिफर करती है कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ही से जो PI है उनको ही हम प्रिफर करें. 2 थिंग्स कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दूसरा जो जॉब की सिक्योरिटी है वो वहां पे ज्यादा है कि ये लॉन्ग टर्म पे हैं, 5 to 10 years तो है ही एटलीस्ट. एट द सेम टाइम अगर हम देखें प्राइवेट में, तो प्राइवेट में उतना जॉब सिक्योरिटी नहीं है. द पीपल आर स्विचिंग देयर जॉब्स अनएक्सपेक्टेडली. सो व्हाट दे एक्सपेक्टिंग, द फंडिंग एजेंसीज एक्सपेक्टिंग कि कुछ सिक्योरिटी हो जिससे कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले ना हो और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी स्मूथली हो. तो दे आर प्रेफरिंग टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ओनली, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ओनली. बट ऐसा नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को या इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलता है, उनको भी मिलता है. बट आप कन्विंसिंग एक प्रपोजल हो आपका तो आपको भी मिल जाएगा. बट ये भी एक रियलिटी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनइक्वालिटी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली, एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. देन फोर्थ है इंडस्ट्री एकेडमिया डिस्कनेक्ट. अभी भी मेजरली दे आर फोकसिंग की इंडस्ट्री एकेडमिया का. अभी मैंने UPCST का, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी है UPCST, तो UPCST ने अभी रिसर्च कॉल निकाला है, मैंने आज ही उसके लिए अप्लाई किया है. तो उन्होंने भी एक अपने गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि वी विल प्रमोट एंड रिकमेंड इंडस्ट्री एकेडमिया proposal. So I put one co-PI from industry. So they will prefer this kind of research proposal, this kind of approach. और केवल नाम के लिए नहीं, फिर उनका हम उस इंडस्ट्री से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे और इफेक्टिवली वो चीज हो पाएगी या नहीं, और प्रैक्टिकल उसका आउटकम निकल पाएगा या नहीं, वो इस चीज को एनालाइज करेंगे. तो वो चीज आपके प्रपोजल में होनी चाहिए, वो चीज आपके एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, तभी आपको वो प्रेफरेंस मिलेगी. तो अभी भी स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड टू कनेक्ट विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया because of some factors. Key factors are a different timeline expectation, lack of trust. एकेडमिया को ये है कि अगर हम कोलैबोरेट करेंगे तो किसको कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. दोनों चाहते हैं कि हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिले, हमें ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिले. यहीं पे IP में भी इनका कंफ्लिक्ट होता है मेनली कि IP का ओनरशिप, सपोज हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया दोनों के कोलैबोरेशन में, तो इंडस्ट्री चाहेगी कि हमारी IP ओनरशिप ज्यादा हो, एटलीस्ट 50% से ज्यादा हो, ताकि ओनरशिप हम क्लेम कर पाए. और एकेडमिया ये चाहेगा कि हमारा ज्यादा हो, एटलीस्ट 50% से ज्यादा हो, ताकि हम क्लेम कर पाए. तो ये भी एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स है. देन नो इंसेंटिव्स फॉर फैकल्टी इंडस्ट्री एंगेजमेंट. सपोज मैं अभी एक्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ और मैंने कोई MOU करवाया, बट उसका मुझे ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट मिला, ना कोई इंसेंटिव्स मिला, तो आई विल नॉट इनकरेज टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इन माय ड्यूरिंग माय टेन्योर.
एट द सेम टाइम अगर मैं एक्नॉलेज किया जाता हूँ, मुझे थोड़ा इंसेंटिव्स मिलता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, तो आई विल इनकरेज कि कुछ और एमओयूज कराए जाएं, कुछ नेशनली, कुछ इंटरनेशनली, कुछ some very few universities have, like Parul University also have, but not financial benefits in terms of if you are doing MOUs, but very few universities have this kind of policies which providing the acknowledgement, certificate and financial benefits as well. So ये रिक्वायरमेंट है आज की, थोड़ा सा पॉलिसीज में हम इस चीज को भी फोकस करें और इम्प्लीमेंट करें ताकि ये गैप थोड़ा फुलफिल हो पाए. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट गैप. ओके, सेकंड लास्ट गैप इज आईपी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. आईपी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मैंने फिर से बताया था आपको. अगर इंडस्ट्री एकेडमिया का कोई कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है या कोलैबोरेशन, वही स्लाइड है ना अब? हाँ नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी स्लाइड लेफ्ट फॉर योर लेक्चर? 3 to 4 स्लाइड सर. ओके ओके ओके, क्योंकि 1 घंटे का हम जनरली बताते हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो हो जाएगा ना? तो हाँ 5 मिनट में हो जाएगा सर, 5 मिनट में. ठीक है, वेरी गुड. So fifth gap है IP and technology transfer. Very few universities has the technology transfer offices within their campuses, and even if they have the technology transfer offices, they are very less. Faculties are very less aware about the technology transfer offices and IP process and documentation. So we are lagging behind the IP technology transfer. Then what should be our evaluation metrics? Promotion generally driven by the publication and impact factor, but at the same time we have very less recognition for patent, startup, policy impact, MOUs and collaboration. I given the example of MOUs and collaboration. तो इस सारी चीजों की वजह से जो इनोवेशन है वो थोड़ा सा हम डाउनग्रेड कर रहे हैं. पॉलिसीज में अगर हम थोड़ा सा फोकस करें पेटेंट को, स्टार्टअप को, पॉलिसीज को, एमओयूज को, कोलैबोरेशन को, और इनको ज्यादा रिकॉग्नाइज करें, तो ये गैप हम फुलफिल कर सकते हैं. देन एक एग्जांपल है. हम क्या करते थे कि पहले हमारे जो फंडिंग अप्रूवल है हम उसमें डिले करते थे, आज भी करते हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत लेंदी थे, बहुत टाइम टेकिंग थे. जो एथिकल अप्रूवल है वो भी टाइम टेकिंग है, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको. बट कोविड-19 के समय हमने ये देखा कि पॉलिसीज में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हुआ. हमने फंडिंग अप्रूवल बहुत जल्दी दिए. कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी हमें 20 लाख की फंडिंग मिली थी कोविड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यूपी में. तो उसका विद इन 1 मंथ रिजल्ट आ गया. DST से था वो. तो कोविड के ड्यूरेशन में ये सारा कुछ हो गया कि फंडिंग अप्रूवल जल्दी आ गया, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम कर दिए गए, इजी कर दिए गए, है ना, अप्रूवल्स बहुत जल्दी हो गए. लेकिन कोविड खत्म तो ये सारी चीजें भी खत्म. तो ये चीजें क्यों नहीं रह सकती हैं परमानेंट के लिए, या इससे भी अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? तो ये एक वेल नोन एग्जाम्पल है जो कि हमने देखा था कोविड-19 के समय, बट फिर से अभी वी आर लैकिंग बिहाइंड दिस. सो दिस नीड टू बी चेंज. लॉन्गर ग्रांट साइकिल की ग्रांट हमें जल्दी मिले, जल्दी रिजल्ट आए, और एक जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन है वो हो, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो दोनों के बीच में. देन एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए R&D में. जो भी पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ताकि आउटकम आ पाए. अर्ली कैरियर साइंटिस्ट को ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए रादर देन एक्सपीरियंस्ड उनको. लोकल प्रॉब्लम या रियल प्रॉब्लम से ड्रिवन ज्यादा हमें पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए. Then this slide also I described previously, and then we as a researcher we should think beyond the papers के बाद भी हमें IPR जनरेशन के लिए जाना है, कोलैबोरेशन के लिए जाना है, और लॉन्ग प्रोजेक्ट्स लिखने हैं.
ओवरसीज मेकर्स को थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज चेक आउटकम मेरी कंप्लीट है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत अच्छा और platform and an opportunity. Mean chat box, you can join if you have not joined, and I have also added this Google feedback form. Last link in chat box is Google feedback form. So you fill this, so that need e-certificate, then teacher, if you are really but waiting, give free e-certificate. That's why we add always in last of lecture. Now one day. Yes, Yes, sir. sir. Welcome, sir. Good evening. Good evening, sir. Thank you, Gopal sir and Dr. Amresh sir. First of all, wonderful lecture. I missed the lecture. 2 participants. So we Patel have to working as a director, Pharmacy College, Sanjeevani College of Pharmacy, Kopargaon, Sirdi. Yes. And sir, my question is that you just discussed regarding the ICMR grant. Sir. So I wanted to know, currently few of the schemes are running. Just I will take only 1.5 minutes, not more than that, probably. Okay, the schemes are there with the varieties of statement like ICMR, extramural, intramural, follow-up grant, intermediate grant, and small grant. Just I want Sir. whether pharmacy institutions are eligible in which chunk of this thing. Yes, sir. Pharmacy highly relevant. ICMR generally focus in clinical aspects rather than basic science. Okay. Basic science को भी फंड करती हैं, बट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स अगर है तो फार्मेसी डिपार्टमेंट तो क्लिनिकल बैकग्राउंड पे ही, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे ही, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स पे ही काम करता है. तो ये हाईली रेलेवेंट है आपका इंस्टीट्यूट, आपका डिपार्टमेंट. Yes, sir. Sorry to interrupt you, but somewhere they are expecting extramural, still they have research grant. मेरे बहुत Okay. सारे फ्रेंड हैं आपके MSU में भी है, हमारा रवि जी है, उनको मिला है. Okay. इनको Okay. भी मिला है, ये भी ICMR इंस्टीट्यूट में नहीं है. बट कुछ जैसे वर्कशॉप वगैरह के लिए मैं देखा हूँ कि जनरली वो ICMR इंस्टीट्यूट को देते हैं, है ना. बट वर्कशॉप भी अभी मैं देखा कि अभी वो कैरियर पॉइंट कोटा में एक इंस्टीट्यूट है. कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट जनरली दे प्रेफर फॉर वर्कशॉप एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेस, दे प्रेफर ICMR इंस्टीट्यूट. अदरवाइज एक मतलब प्रेफरेंस होता ही है, आप समझिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का अपना अपना, बट दे गिव टू नॉन ICMR इंस्टीट्यूट आल्सो रिसर्च ग्रांट स्पेशली. Yes. Okay. Yes. And one more last my question is what are their depthness or expectation of the research proposal up to clinical study and kind of things? नहीं, क्लिनिकल स्टडी बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है. जैसे मुझे खुद भी ICMR का ही ग्रांट मिला है, बट क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स नहीं है उसमें. इवन प्री क्लिनिकल रिसर्च मैंने नहीं लिखा है. मैंने बेसिक रिसर्च को ही ट्रांसलेशनल स्टडी में कन्वर्ट करके और प्रपोज किया है और उन्होंने अप्रूव किया है. हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए सर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका क्लिनिकल स्टडी होना हो, है ना. बेसिक स्टडी व्हिच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ हेल्थ, है ना. Okay. Yes. Thank you sir. Thank you Gopal sir. Thank you sir for joining and making it more interactive, because when people ask question then it becomes more clear. हम तो क्लास में भी लेक्चर में भी बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछो, तो उससे क्योंकि बहुत टाइम लेक्चर देने में बहुत सारा चीज जो है निकल जाता है, नहीं वो डिस्कस हो पाता, बट क्वेश्चन आंसर में डिस्कस हो पाता है. सर क्लास मैंने गोपाल सर को देखा है क्लासरूम में, 1-2 बार मैंने देखा है. पारुल में भी वो गए थे जब, तो क्लासरूम में चले गए थे और जब बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे तो
खुद भी फिर खुद Yeah. पूछने लगे, तब फिर बच्चे पूछने लगे क्वेश्चन। They always insist and motivate to student to मैं come वहां out. भी 2 बार गया हूँ अमरीश जी, सर के हाँ, यहाँ जी। भी मैं 2 बार लेक्चर अच्छा, लेने अच्छा। गया हूँ। जी Yes. जी। DVT का पॉपुलर लेक्चर सीरीज सर करवाते हैं कंटिन्यूअस। Yeah. Yes. Yes. और लेडी टाटा है ना, And yeah, क्या था? Lady Tata Memorial Trust. Yes. लेडी Thank टाटा you. मेमोरियल ट्रस्ट का भी उन्होंने लेक्चर सीरीज करवाए थे, वहां भी मैं गया था। सो Yes, sir. रेगुलरली सर Yeah. करते हैं। Always अच्छा है। we are getting benefit from Gopal sir and all like researcher like you. Eh? मैं तो अब क्या है कि जो 8 साल हमने पीएचडी पोस्ट डॉक टॉप इंस्टीट्यूशन में बिताया, आई एम नॉट गेटिंग दैट मच अपॉर्चुनिटी टू वर्क, सो आई एम ट्राइंग टू डिसेमिनेट दैट नॉलेज। आपने देखा होगा अभी हमने लिंक्डइन पर में भी लिखा है कि Right. किसी को टेक्निकल हेल्प चाहिए जो हमने 20 साल पहले सीखा, स्टिल 90% इंस्टीट्यूशंस डजंट हैव दैट फैसिलिटी एंड दैट Definitely. कैपेबिलिटी, है ना। सर So, हम ने चाह रहे हैं सर कि डिसेमिनेशन हो नॉलेज का सर, That is and thank you important. for giving opportunity to interact with more and more people. I'm Yes. advisor of his company also. अमरेश जी का एक Yes, कंपनी sir. भी है, is director of one company, private limited company. Oh, which one, sir? Sorry to taking more time. Which company, sir? सर केम बायोब्रिज रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। So Oh, so nice. गौतम Okay. बुद्धा नगर में है, दिस इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो आई एम एडवाइजर देयर आल्सो। Oh. मैं चाहता हूं, अब क्या है कभी कभी 2 घंटे का बच्चा प्रोजेक्ट बोल देता है, सर पीएचडी का क्या होगा प्रोजेक्ट, या वो तो वो वहां पर मैं तब चार्ज करना पड़ता। अदरवाइज Mhm. सपोज कोई टेक्निकल फॉल्ट में फंसा हुआ है ना, उसने Yeah. किसी को वेस्टर्न ब्लॉट नहीं आ रहा है, जेल में कहीं Yes. है, क्लोनिंग नहीं हो रहा, Yes, सो आई yes. कैन गिव देम टेक्निकल हेल्प विदाउट, है ना। 5-10 Right, मिनट right. 15 मिनट का एंगेजमेंट फ्री होगा, लेकिन अगर उनको पूरा चाहिए 2-3 घंटे का, देन Then इट्स it- समटाइम्स डिफिकल्ट। Right, right. हमने Okay. सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था 2012 में कि अगर किसी को लैब एक्सपेरिमेंट और इन सब क्लोनिंग से चीजों रिलेटेड मैं हमेशा लिखता रहा हूँ, एंड आई हैव हाँ। गिवन हेल्प टू आईआईटी, जेएनयू में भी मैं जो दूसरे लैब में गया, एनआईटी, आई हैव हेल्प्ड। अब छोटा हेल्प के लिए ना ही वो कभी उस टाइप का एक्नॉलेजमेंट करते हैं, बट मेरा नेटवर्क अपना बढ़ता है, अपना कॉन्फिडेंस आता है। बट आई हैव हेल्प सेवरल पीपल इन क्लोनिंग एंड जीन एक्सप्रेशन इन इकोलाई होस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत सारे जो है ना, क्योंकि बहुत रिगोरस 6.5 साल में पीएचडी किया मैंने, सारी सुविधा होने के बावजूद, है ना। और 2 Right. साल पोस्ट डॉक जो है ना डीएस कोठारी वाला था। सो Mhm. वही एक्सपीरियंस sir. काम दे रहा है। Yes, yes. Really great, sir. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. Other participant, Professor Manoj Kumar Misra ji has joined. Sir, do you have any question, any discussion? Dr. Manoj Kumar Misra, yes. No, sir, I am listening only. Just I have joined, but I am listening. I am getting good knowledge regarding. Where are this. you, sir? I am from the Patna, principal Okay. of International Business College. So my background is business and economics, social science. Okay, okay. Not medical science, but I know the biostatistics and research methodology. I have taught for the medical students also. Very good, Okay. very good, very good. It's good. So I saw the link, just I opened mobile and saw the link, so I joined, so that I will listen. But I think the time is going to close. Yes, Your lecture is going to close. Okay. yes, So yes, it is yes. interesting for me also. Yes, trying Thank to increase the knowledge pool. That is purpose through any means, है ना. Any other participants have any query, question, complementation? Hello. लाइफ साइंस, हु इज लाइफ साइंस के नाम से कौन ज्वाइन कर रहे हैं? लाइफ साइंस, लाइफ साइंस दिख रहा है, लाइफ साइंस क्लासेस। हेलो, लाइफ साइंस क्लास से एक जुड़े हुए हैं, अपने नाम से जुड़िए तो अच्छा रहेगा, है ना। यस सुजीता, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, yes. Please introduce and ask question, please. Good evening, everyone. I'm Sujita of UG, and I don't know is it correct or not, but I'm trying to ask. How does the innovation ecosystem differ between Indian metropolitan cities and smaller towns? Okay, so in terms of policies or in terms of research funding? Uh,
both Are I you want. asking about environment or policy? Okay. So in terms of Ecosystem also So mainly. ecosystem is always in rural area. Ecosystem is not equivalent like city, na madam. This is obvious, but policy is available everywhere. Ecosystem is if you don't have all facilities of conducting research. Research needs, suppose you need some enzyme. So in rural area, it will reach after cities. This is common things. Electricity reach in rural area is less. So you cannot store your enzyme. And other small companies, they are also in cities and big towns. So this is obvious, no, है ना? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये तो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है ना, बट पॉलिसी सब जगह के लिए है. समटाइम्स इवन इन रूरल एरिया सम पीपल वर्किंग, अगर उनको लग रहा है, जैसे आप वो आपने देखा होगा चाइनीज का वांग चुंग, क्या था उनका 3 इडियट वाला, है ना? जी 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 Yeah. उनका But सोलर that is exception. That is not ecosystem. That is exceptional case. Ecosystem रिसर्च का हमेशा ही सिटी में ज्यादा होगा ना, बेटर इकोसिस्टम होगा. सर. Okay. दरभंगा में जब एयरपोर्ट नहीं था, वहां कोई अगर इस्टेब्लिश करना चाहेगा तो वहां अच्छा साइंटिस्ट ही नहीं आएंगे कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वहां एयरपोर्ट ही नहीं था दरभंगा में. समझ रहे हो? Should I remove you life science? नाम जानना हुआ अटेंडिंग है ना? Do you have Yes. any questions, sir? Yes, sir. Good evening, Gopal sir. Good evening. Good evening. Sir, just I just have a query. So our college runs the Department of Biotechnology, and we offer the BSc Biotechnology for the last 20 years, sir. And most of our students are well placed in the pharmaceutical and in research labs, sir. But I want to know that how can we can improve the laboratories so that we can also organize workshop and other training program for the students. Okay. So सबसे पहले तो बिना हम अभी जा रहे हैं, आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर इन पटना यूनिवर्सिटी, है ना, पटना साइंस कॉलेज दिस ईयर इन 2025, है ना? Yes. And here also through online also I have delivered 2 times this free Google lecture on free Google tools for educator under this this FDP program organized by Malviya Mission Center of Patna University, है ना? Yes. For new faculties. So you can engage maximum Bihari scientists are, है ना, working outside Bihar. So whenever they are going there, you can grab that opportunity for interaction with your student, so that you can create that, है ना? अभी जो बताया सुजीता ने, इकोसिस्टम क्रिएट होगा. डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि आप 10 लाख रुपया कहां से लाएंगे, बट रिसर्च फंडिंग इज अवेलेबल. अगर कैपेबल फैकल्टी होंगे तो अभी ये स्टार्टअप अमरेश जी का है, ही हैज गॉट, है ना, 50 लाख रुपीज. उसी तरह वहां भी बहुत सारे, अब गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई नो सेवरल फैकल्टी इन गया, है ना? Central University of South Bihar is here. Yes, sir. यस. सो अब वहां तो फंडिंग है उसके पास. अमित कौन है? 3-4 लोग हैं जेएनयू वाले, प्रोफेसर रिजवान है, जावेद साहब हैं, ये सब लोग हैं जी सर. हाँ, तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए, मेंटरिंग करवाइए वहां के स्टूडेंट को. ये जो बाहर से लोग जा रहे हैं, आप हमसे भी कनेक्ट करिएगा. आई विल कनेक्ट यू विद सेवरल, है ना, स्कॉलर from outside Bihar, and they are ready to deliver. Even हमारे यहाँ भी एक गया के फैकल्टी हैं, है ना, शायद आप जानते होंगे, वो वहीं से किया है, जामिया से किया है उन्होंने PhD, है ना.
और अलीगढ़ से किया है उन्होंने MSc, है ना, अच्छा। कोरिया वगैरह गए थे। रिसेंटली ही हैज जॉइंड आवर यूनिवर्सिटी, ही इज फ्रॉम गया ओनली, अच्छा, है ना। with which university you are associated, sir? उक्का तरसारी यूनिवर्सिटी। हमारा नंबर ले लीजिए, या हमने अभी लिंक्डइन कर दिया है, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। आई हैव गिवन ऑल माय सोशल साइट्स लिंक हियर इन चैट बॉक्स, Yes, sir. है ना। लिंक्डइन का है, मेरे यूट्यूब का है, फेसबुक का, टेलीग्राम, ब्लॉग, Sir, है ना। one thing I would like to and- know from you, sir, that जी, if I am interested in organizing a motivational speech for our undergraduate student, sir, would you like to deliver a motivational speech so that the student can get encouraged to pursue the सर study and research? मैंने 227 लेक्चर लिए हैं। कितने? 227 लेक्चर। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर Yes, sir. एंड आई हैव स्पेंट 8 years। बताएं जेएनयू, अभी जो वो थे विपुल सर थे। सो आई एम willing to take a lecture for MSc student, BSc student, and my YouTube channel have also several lectures on that opportunities for bioscience student, है ना। वो Yes. सारे हैं उस पर में। So you can note down, LinkedIn पर तो जुड़ ही जाइए, and you can note down my phone number also। हमने अच्छा, बताया है कि इस पटना साइंस कॉलेज में मैंने लिया है, मिथिला Sir, यूनिवर्सिटी में लिया है। I would like to get the link to join or to join your नहीं दिख रहा है, ये नहीं channel. दिख रहा है आपको चैट बॉक्स में? मेरा नहीं दिख रहा है। मैंने फोन नंबर दिया आपको, व्हाट्सएप देख- नंबर है ना। Let me see, sir. Yes, sir, I have got, sir. सो नॉलेज पुल बढ़ाना भी है और नेटवर्किंग एक दूसरे का करके एक दूसरे को हैंड होल्डिंग भी करना है ना। जी सर। तो वहाँ गया में भी सब लोग हैं, वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी भी मैं जाता हूँ, है ना। सब जगह जब मैं छुट्टियों में साल में 2-3 बार मैं जाता ही हूँ, है ना। एंड देन आई डिलीवर लेक्चर। सर एक इनवाइटेड टॉक करवाएंगे सर। आई विल इनवाइट यू टू डिलीवर एंड इनवाइट। आप भी अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दिखा आपको दोनों नंबर मेरा? दिख गया सर जी। हाँ, 8160245551। उससे ऊपर भी है व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, एक व्हाट्सएप नंबर भी है। यस सर। 955888। एनी अदर पार्टिसिपेंट्स हैव एनी क्वेश्चन? अमरीश जी है ना? कैमरा क्यों बंद कर लिया अमरीश जी? सर ऐसे ही मतलब कोई any other question, any queries, you can ask to sir also. If you have any query to the sir will answer it. If you have query for me, I'll answer. There is no issue. Yes. You can interact with any of और आपका नाम और फोन नंबर लिख दीजिए, और अमरीश जी को भी मैं टैग कर दूंगा लिंक्डइन पर में, सो यू कैन, है ना, कनेक्ट विथ अमरीश जी ऑल्सो। yes sir, sure sir. तो आप लाइफ साइंस क्लास क्यों लिखे हैं? वो सर एक मेरा एक चैनल था सर, जब कोरोना काल में जब ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी सर ना, उस वक्त सर हम लोग कॉलेज में, यहाँ पीजी कॉलेज है सर, मिर्जा का एमजी कॉलेज है, मगध यूनिवर्सिटी का से एसोसिएट ये एफिलिएटेड है सर। गवर्नमेंट एडेड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स वे बैक इन 2005 सर। करिए अभी आपको देखते हैं बहुत सारे हेल्प कैसे कर सकते हैं, या और भी लोगों से कनेक्ट कर देंगे आपको। क्या है कि एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद ऑनेस्टली हम ऑनलाइन भी बोलते हैं, पीपल आर नॉट वर्किंग। ये क्या है, ये जो लेक्चर करवा रहे हैं, थैंक्स टू अमरीश जी ऑल्सो फॉर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम इन एडिशन टू हिज नॉर्मल टाइम, एंड आई एम ऑल्सो डिवोटिंग एक्स्ट्रा टाइम, है ना। 150 से ज्यादा टाइप के लेक्चर अलग अलग टॉपिक पर हमने करवाए हैं सर। हमने आपको हम बहुत सारे लेक्चर हम सुने हैं सर आपका, और इसमें बहुत फायदा होता है, और बहुत यू हैव टेकन ए वेरी गुड इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज सच ए यूजफुल लेक्चर्स। एंड चाह रहे हैं कि नॉलेज पुल ओवरऑल बढ़े, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या में ज्यादातर नॉन प्रोडक्टिव जनसंख्या है, तभी तो हमको साइंस का चीज इंग्लैंड से, अमेरिका से लेना पड़ता है, यूरोप से, समझ रहे हैं आप? जी हाँ सर, जी जी। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो अपनी क्षमता के मुताबिक कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल द रिसोर्स पर्सन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दे आर आल्सो डिलीवरिंग लेक्चर। यस, वो भी है ना बहुत बड़ी बात। जी हाँ सर, बहुत बड़ी बात है सर वो जी, कि फ्री में लेक्चर लेने के लिए रेडी हैं। जी हाँ। So thank you everybody. I have shared again
Google feedback form, so fill it. Yes, और sir. आप नंबर नोट कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना? ये व्हाट्सएप कर देंगे, यस सर। और हाँ, कर दीजिए। सर एक पार्थेनियम मेरा सर पीएचडी जो है सर, रिसर्च वर्क सर, वो पार्थेनियम पर है सर, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। आप जान रहे हो इंडिविजुअली फिर डिस्कस कर लेंगे ना हम लोग, जी, सर। बाकी लोग रुके हुए हैं तो हम लोग फोन से फिर बात कर लेंगे। ठीक सर, आपका हम नंबर व्हाट्सएप भी सेव कर लेते हैं और आपको हम भेजेंगे, व्हाट्सएप हाँ करते हाँ, हैं। फोन भी करिएगा, है ना? So थैंक यू thank सर। you, Dr. Amresh Mishra, for your time and effort and compiling all those things. This is not research topic, but this is important topic so that other people will try to, है ना, overcome all these problems when they start the journey, scientific journey. And meantime, some policymaker may also try to, है ना, reduce that gap. That is purpose. So thank you everybody and good night.